से आप कह सकते हैं। अ बेसिक क्वेश्चन विच इज़ कमिंग इन टू अवर माइंड इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लेशन, वाई वी आर फेसिंग और वाई इंडियन इकोनॉमी इज़ फेसिंग राइजिंग प्राइसेस एवरी ईयर। चीज़ों के दाम असल में बढ़ते क्यों हैं और उन्हें कैसे मापा जा सकता है। हाउ टू मेज़र दोज इंक्रीजिंग प्राइस, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया एंड व्हाट इज़ द measurement methodology to calculate in what percent the price goes up to high. And here I am coming with a new video, and that is all about inflation. And basically we can say inflation refers to the rise in the prices of most goods and services of daily or common use, and goods can be of any combination. And you can also say that rise in the prices of most goods and services of daily and common use, such as food, clothing, housing, recreation, that is related to entertainment and fun, and one more thing, transportation and consumer. And basically inflation is something which measures the average price of change in the basket of commodities and services over time. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर बास्केट विच वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, दैट मीन्स a consumer is selecting different combinations of goods and services in a particular basket for purchasing from month to month wise and from year to year wise. साल में अगर कुल टोटल अगर आप मिलाएं तो भी आप कह सकते हैं एक बास्केट में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स परचेस करते हैं। और when we are comparing the price of goods which is purchased in current year and price of goods which is purchased in existing year, then we can have the calculation and data whether the price has been increased or decreased if we compare the price of करेंट ईयर विद द एग्जिस्टिंग ईयर। इस साल के प्राइस को पिछले साल के प्राइस से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक डेटा और कुछ फिगर्स हमारे पास आ जाते हैं कि प्राइस बढ़े या घटे। उसके अलावा आप यहाँ पर एक इन्फ्लेशन को एक नॉर्मल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। हियर इट इज़ मेंशन्ड अबाउट द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इन डिफरेंट ईयर्स। यू कैन से इन ईयर 1970 यू कैन से कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी वॉज 0.25 cents, and in year 2019 you can say price of coffee reaches up to $1.59। तो यहाँ आप देख सकते हैं ईयर टू ईयर कितना इन्फ्लेशन हुआ। एक कप कॉफ़ी का रेट 0.25 सेंट से बढ़कर 2019 में $1.59 तक पहुँच गया। तो दिस इज़ द इन्फ्लेशन of the price of coffee, you can say. And next thing is, just like the inflation in coffee, you can measure inflation in per liter milk. 1947 में मिल्क अगर जो पर लीटर का जो प्राइस था वो था 12 पैसे, 2019 में ये 46 रुपीज़ हो गया। पेट्रोल का अभी के डेटा के अकॉर्डिंग तो 100 रुपीज़ पर लीटर हो गया, और इन 1947 इट वाज ओनली 27 पैसे। जस्ट लाइक दैट यू कैन मेज़र सिनेमा टिकट विच इज़ नाउ 300 पर टिकट। आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। और इन्फ्लेशन, अगर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आए कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, व्हाट इज़ द मेजरमेंट criteria for calculating inflation, so there are basic things or basic line of production from which we can measure inflation. And you can say manufacturing units, and first the goods are produced in a manufacturing unit, or a farmer is producing crops, and that you can say which is in raw form, that is the manufacturing unit. And manufacturers are transferring and selling it to the wholesaler, and finally it is approaching to consumer and final user of that particular good. So there are different percentage and different proportion, or you can say weightage is given in this two types of indexes. तो यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि किस तरीके से हम होलसेल हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करें, तो देयर आर टू क्राइटेरिया। वन इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स, सेकेंड वन इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो हम इन दो तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है। तो हमारे इंडिया में इन दोनों तरीके के इन्फ्लेशन को यूज़ किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में अगर हम देखें
होलसेल प्राइस इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो देयर आर आइटम्स कवर्ड इन होलसेल प्राइस इंडेक्स इज 697 आइटम्स। मैंने आपसे कॉम्बिनेशन की बात की थी, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which can be placed in a particular basket, that is 697 combination of goods and services। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या क्या कैटेगरीज होती है, देयर आर 448 कैटेगरीज फॉर रूरल बास्केट एंड 460 कैटेगरी फॉर अर्बन बास्केट। मतलब शहर और गांव दोनों जगहों के लिए अलग अलग कैटेगरीज आपकी दी हुई है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम केवल गुड्स को लेते हैं और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को लेते हैं। और ये इसकी जो कंप्लीट रिपोर्ट जो आप कह सकते हो कि डिस्क्लोज़ की जाती है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स की ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र के थ्रू की जाती है, और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो होती है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट जनरेट करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में और इनका वेटेज क्या होता है, तो यहाँ आप वेटेज अलग अलग आप देख सकते हैं कि वो जो मैंने कैटेगरीज़ बताई उन सारे कैटेगरीज़ को अगर एक एक हेडिंग्स में अगर आप करेंगे तो देन देर आर डिफरेंट वेटेज एंड डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ बीइंग परचेज बाय द डिफरेंट कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो हम फूड एंड बेवरेजेस 14% उसमें इन्वेस्ट करते हैं, हाउसिंग में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, अपैरल अगर आप ये देख सकते हैं तो उसमें हम इतना इन्वेस्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल केयर, रिक्रिएशन, समथिंग रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट एंड फन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन में आप ये देख सकते हैं। तो अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारे आपके वेटेज दिए हुए हैं कि हम पूरे साल भर में, और आप कह सकते हैं कि मंथ टू मंथ वाइज एंड ईयर टू ईयर वाइज हाउ मच वी आर मेकिंग our spendings on this goods and services। These are the different categories which varies from country to country। ये इंडिया का है, इंडिया का प्रपोर्शन दिया हुआ है, हो सकता है किसी और कंट्रीज़ में यही सेम हेडिंग्स में अलग अलग प्रपोर्शन के एक्सपेंडिचर होते हैं। नेक्स्ट वन आपका यही ही है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड बेवरेजेस, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट, क्लॉथिंग, फुटवेयर, दिस आर द डिफरेंट हेडिंग्स which are included in consumer price index। and one more thing कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स में एक चीज़ तो आती है, जैसे मैंने कैटेगरीज़ बताई, कैटेगरीज़ के साथ अगर आप देखेंगे तो बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स वी आर इंक्लूडिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ इन रॉ फॉर्म। आप यहाँ ये देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोड्यूस होने के बाद दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर्स, होलसेलर्स के पास जाती है, होलसेलर फिर फाइनली किसको देते हैं, होलसेलर्स आर सेलिंग इट टू रिटेलर्स एंड रिटेलर्स आर द शॉप्स फ्रॉम वेयर कंज्यूमर्स और द फाइनल यूज़र ऑफ दैट प्रोडक्ट इज़ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये जो प्याज पड़ा हुआ है ये सीधा प्रोड्यूसर या फार्मर्स के थ्रू यहाँ पर आके गोडाउंस में रखाया हुआ है, लेकिन ये होलसेल प्राइस इंडेक्स में इंक्लूड होगा। और एट द सेम टाइम when goods are approaching to retail shop or in big bazaar, in mall, you can say that goods and services will be included in the category of consumer price index। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में वेटेज क्या है। जैसे अभी हमने पिछले पेज में हमने देखा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितने प्रपोर्शन के गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। तो बेसिकली देयर आर ओनली 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर कैलकुलेटिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स। आप देख सकते हैं फूड आर्टिकल्स दैट इज़ अवेलेबल इन रॉ फॉर्म, और यू कैन से कि दैट इज़ अनफिनिश्ड विच हैज़ नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और विच इज़ नॉट रेडी टू बी यूज बाय द फाइनल कंज्यूमर। फ्यूल एंड पावर में आप देख सकते हैं, फ्यूल तो आप जानते हैं केरोसिन ऑयल और उसके बाद डीजल, पेट्रोल आप देख सकते हैं, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी, दिस ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट पावर एंड फ्यूल। एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो उसका सबसे देयर इज़ द लार्जर प्रोपोर्शन और लार्जर वेटेज इज़ गिवन टू मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट विच इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम रॉ टू फिनिश प्रोडक्ट एंड दैट इज़ 64.2% प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड डेट इज़ फ्रॉम द कैटेगरी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो उसमें से होते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में भी 64.23% आपके प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूल एंड पावर 13.15 और वैसे ही 22.62% फूड आर्टिकल्स हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज़ हैं
अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज की, तो हमने ये सीखा होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल 3 कैटेगरीज हैं और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मल्टीपल कैटेगरीज आर अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ दोज हेडिंग्स वी आर कैलकुलेटिंग वेदर द प्राइस हैज़ बीन इंक्रीज्ड और डिक्रीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ईयर। तो ये सारी चीज़ें होती है। साथ में आप यहाँ पर ये देख सकते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी आपकी 3 कैटेगरीज होती है, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर, जो अभी मैंने बताया। तो प्राइमरी आर्टिकल में आपके 102 आप कह सकते हैं प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि मैंने बताया टोटल 690 समथिंग प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें होलसेल में। तो कैटेगरीज़ में अगर हम डिवाइड करें तो वैसे ही आप देख सकते हैं फ्यूल एंड पावर में 19 प्रोडक्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड की कैटेगरी में 555 की रहती है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसे आप एक्स मंडी कहते हैं कि प्राइमरी को, कि सीधा वो रॉ फॉर्म में होती है और वो आके किसी को डाउन या किसी जगह में आ जाती है, तो वो बहुत कम प्रोपोर्शन की है। लेकिन मैन्युफैक्चर्ड का सबसे ज़्यादा होता है, डेट इज़ एक्स फैक्ट्री लेवल, मतलब वो प्रोसेस्ड हो जाती है एंड नाउ इट इज़ रेडी टू बी यूज बाय द फाइनल कंज्यूमर। तो यहाँ पर आपको एक मोटा मोटा हिसाब आपको पता चल गया होगा कि this implies the cost of living. Inflation implies the cost of living. When inflation is increasing in a particular country, then cost of living and cost of survival is also increasing in a particular country. एक कंट्री में सर्वाइव करने का पैसा, और आप कह सकते हो महंगाई या ज़िंदगी महंगी हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो ये एक बेसिकली आप मोटा मोटा आप समझ सकते हैं। साथ में आप ये देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के थ्रू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग डेटा दिए हुए हैं कि किस तरीके से अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस लास्ट ईयर एग्जिस्टिंग ईयर से आपके बढ़ते जाते हैं। तो फूड एंड बेवरेजेस के आप देख सकते हैं 54%, सॉरी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं रूरल में 154 से 155.8 यहाँ पर वो जो हो चुका है। तो आप इस तरीके से आप डिफरेंसेस का पता लगा सकते हैं। रूरल और अर्बन का अलग अलग दिया है, हेडिंग वाइज दिया हुआ है, हियर यू कैन चेक, और उसके साथ साथ फिर कंबाइन भी दिया हुआ है। रूरल में आपका दिया हुआ है लास्ट ईयर, एग्जिस्टिंग ईयर और करंट ईयर, और अर्बन का भी ठीक वैसे ही दिया हुआ है। फाइनली कंबाइंड दिया हुआ है और लास्ट में टोटल करके आपका इन्फ्लेशन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इंडेक्स में मई और अप्रैल का कंपैरिजन किया गया है 2021 का। तो हियर यू कैन चेक, दिस इज़ द कंप्लीट रिपोर्ट ऑफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो आप इसको आप देख सकते हैं, ये बेस ईयर से कंपेयर होता है। ऊपर बेस ईयर दिया हुआ है 2012, दैट इज़ 100। तो उस समय से लेके अभी तक में प्राइस में कितना इंक्रीज़ आपको देखने को मिला, मतलब 2012 के बेस ईयर से, अप्रैल बेस ईयर से 100 रुपीज़ से आज तक में अगर आप देखें जो चीज़ 100 रुपये की थी वो आज कितनी बढ़ चुकी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फूड एंड बेवरेजेस को ही 100 रुपये से वो बढ़ के 154 हो गई, और रूरल एरिया में कितनी है, अर्बन एरिया में कितनी है, आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। डेट इज़ द कंप्लीट proportion and percentage of inflation in a particular country। साथ में एक और चीज़ हमारे माइंड में हमेशा आती है, डेट इज़ द बर्निंग क्वेश्चन विच इज़ एवरी टाइम कमिंग इन अवर माइंड, हाउ डज इन्फ्लेशन वर्क, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो बेसिकली देयर आर 3 causes on the basis of which we can decide that whether how inflation is working। so due to demand pull, आप ये देख सकते हैं कि डिमांड पुल के कारण, और दूसरा कॉस्ट पुश के कारण, और तीसरा आप देख सकते हैं बिल्ट इन के कारण। तो आप ये देख सकते हैं डिमांड पुल में अगर आपको देखना पड़ेगा तो डिमांड पुल का एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपके सामने है। दिस इज़ द हाईली डिबेटेड इशू एंड दिस क्वेश्चन आई एम डैम श्योर इट इज़ कमिंग इन एवरीबडीज़ माइंड, व्हाई द प्राइजेज ऑफ एडिबल ऑयल इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो आज की डेट में एक इन्फ्लेशन, एक महंगाई हमें तेल के दामों में देखने को मिलती है कि क्यों बढ़ रहे हैं ये तेल के दाम। तो आप ये देख सकते हैं ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, ये सब, इन सब की डिमांड 20% से इंक्रीज़ होकर आज की डेट में 56% हो चुकी है। तो ऑल इंडिया लेवल में अगर 2015 से 2021 तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो डिमांड हैज़ राइजन फ्रॉम 20% टू 56% इन इंडिया। तो सबसे पहला जो हमारा रीज़न था आपका कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज़ फॉर इन्फ्लेशन, तो सबसे पहला डिमांड पुल। तो डिमांड पुल इसी तरीके से हुई है कि हम तेल की डिमांड करना हमने ज़्यादा कर दिया, और आप तो जानते ही हैं कि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर इंडिया, दैट इज़ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन।
तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने के कारण और तेल का यूज़ करने के कारण भी आप ये कह सकते हैं कि इसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और डिमांड पुल होने के कारण भी इन सारी चीज़ों पर आप देख सकते हैं। तो पहले जितना पर डे यूजेज होता था उससे ज़्यादा यूजेज आज हम कर रहे हैं। तो हियर यू कैन से कि पिछले 11 सालों में पहली बार एक शार्प राइज देखने को मिलता है हमें 2021 में अचानक। और कुछ और भी सारी चीज़ें हुई है कि जैसे कि कोरोना, किसी सरसों के तेल और दूसरी चीज़ें लगाने से कुछ मिसकॉन्सेप्शन एंड सुपरस्टिशंस भी है, जिसके कारण तेल के दाम अचानक से बढ़े और डिमांड भी अचानक से बढ़ गई। साथ में एक और चीज़, डिमांड अगर आप देखेंगे तो बेसिकली वी आर इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम मलेशिया ऑल्सो। तो एक जो दूसरा कारण आपका अगर देखने को मिलता है तो कॉस्ट पुश का, तो कॉस्ट पुश में यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हीलियम गैस जो एक मतलब बैलून में जो भरी जाती है, तो हीलियम का प्राइस पहले था $10, अब हो गया है $20। तो पहले बैलून्स मिलते थे $5 में, अब मिलते हैं आपको $10 में। तो बिकॉज ऑफ द व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग, तो प्रोडक्शन कॉस्ट अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो हम कह सकते हैं तो यहाँ पर कॉस्ट पुश आता है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट का भी इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि डिमांड पुल तो हो गई। प्रोडक्शन कॉस्ट किस तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वी वेर इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम मलेशिया एंड इंडोनेशिया एंड देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ लेबर इन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, दैट्स वाई वी आर फेसिंग प्रॉब्लम। इवन वी आर इम्पोर्टिंग पाम ऑयल फ्रॉम वी वेर इम्पोर्टिंग पाम ऑयल फ्रॉम नेपाल ऑल्सो। तो वहाँ से भी जब हम खरीदते थे तो वहाँ भी अगर आप कह सकते हैं कि वहाँ से भी जब हमने ख़रीदना जब कम किया तो दैट हैज़ क्रिएटेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ नेपाल ऑल्सो। तो नेपाल में भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि ख़रीदी नहीं जा रही थी चीज़ें। तो खैर वो इन्फ्लेशन का नहीं है, वो दूसरे का है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। तो ग्राउंड नट का आप देख सकते हैं प्राइस 147 से 177, और मस्टर्ड ऑयल 118 टू 171। इसी तरीके से आप सोया सॉस एंड पाम ऑयल का भी आप प्राइस देख सकते हैं। तो क्योंकि हमने खुद ही बनाना शुरू कर दिया, हमने वहाँ से लेना कम किया था कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट्स के कारण, तो इसके कारण नेपाल से हमारे कुछ रिलेशंस ख़राब हुए थे। उसके बाद ओहली के कारण कुछ हुए थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के कारण। तो अब यहाँ पर आगे आप देखिए कि अब ये जो डिमांड थी, पहले बेसिकली जो डिमांड थी वो 8 to 10 मिलियन टन थी। अब जो हमारी डिमांड जो बढ़ के हो गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिकली ये डिमांड हो गई है 23 to 25 मिलियन टन। तो आप ये देख सकते हैं कंजम्पशन की लाइन आपकी दी हुई है, अवेलेबिलिटी की लाइन भी आपकी ब्लू कलर से दी हुई है, इंपोर्ट की लाइन भी हमारी दी हुई है। तो बेसिकली अगर हम देखें जो 8 to 10 मिलियन टन से जो हमारी डिमांड एकाएक बढ़ के 23 to 25 मिलियन टन हो गई है, इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है। और एक और चीज़ आप देखिए कि हमारी जो 21 मिलियन टन की जो डिमांड है उसमें से केवल हम 44% जो है वो हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर पाते हैं। बाकी रेस्ट 56% वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम सम अदर कंट्रीज़। दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम, एंड वी आर इम्पोर्टिंग द ऑयल ऑफ कॉस्ट ₹61,505 59,000 करोड़। तो इतने लगभग 61,000 करोड़ का हम तेल दूसरी जगहों से इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मेजर सोर्स ये जो ऑयल के अर्जेंटीना, ब्राज़ील और सोयाबीन ऑयल, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाम ऑयल के हैं, यूक्रेन एंड अर्जेंटीना, और सनफ्लावर ऑयल के। तो यहाँ से हम बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम अपने खुद की कंट्री के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो दो फैक्टर मैंने बताया, एक डिमांड और एक दूसरा मैंने बताया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी अगर आप देख सकते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक और बेसिक रीज़न ये भी है कि इंडिया इज़ इम्पोजिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट 50% ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी फॉर इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अदर कंट्री। जब हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो अपनी कंट्री में आने के बाद इम्पोर्ट ड्यूटी जो होती है वो लगभग 50% और लग जाती है, जिसके कारण कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि होलसेलर और कंज्यूमर इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है। होलसेलर जब रिटेलर को जब कुछ भी सामान बेचता है तो रिटेलर बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का, अपने प्रॉफिट का, अपना लेबर कॉस्ट, अपनी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये सारी चीज़ें जोड़ने के बाद फिर फाइनल कंज्यूमर को प्रॉफिट के साथ अपने सामान को बेचता है। उसी तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद, टैक्सेस लगने के बाद उस होलसेल प्राइस में भी
ये टैक्स जब लगते हैं तो वो प्लस होते हैं, उसके बाद फाइनली एमआरपी प्राइस में यहाँ पर बेचे जाते हैं। तो कॉस्ट पुश कैसे हुआ, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोर्ट्स ऑफ ऑयल में लगाई हुई है। तीसरा जो मैंने बताया कि जो डिपेंडेंसी जो लेबर के ऊपर है, तो बेसिकली इंडोनेशिया एंड मलेशिया इज फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ लेबर बिकॉज ऑफ कोविड-19। दैट्स वाई द प्राइसेस इज गोइंग एट पीक एंड वी आर facing the spurt in the prices of goods and services in our India. That is the also cause of inflation। तो 3 कारण मैंने आप लोगों को बताया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो रिटेल अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो एक स्टैंडर्ड जो रेशियो एक स्टैंडर्ड परसेंटेज होता है जो आरबीआई भी चाहती है कि इतना परसेंटेज तो होना ही चाहिए। तो उतने परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो डेट इज़ स्टैंडर्ड परसेंटेज फ्रॉम 3% टू 6%, आप कह सकते हैं 3 से 6% तक होना ही चाहिए इन्फ्लेशन, ऐसा आरबीआई का भी कहना है। साथ में ये भी कि बेसिकली मैंने आप लोगों को ये रीज़न्स बताए, साथ में ये 2 रीज़न बताने के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी ऑल्सो लीड्स टू इन्फ्लेशन। तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने इस कोरोना का इमरजेंसी बजट निकाला तो 20 लाख करोड़ का जो बजट सरकार ने निकाला, तो बेसिकली इट इज़ ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट कॉरपोरेट हाउसेस। किस तरीके से बहुत सारे शेयर्स परचेस किए जा रहे हैं, अमेरिका में भी और इंडिया में भी बहुत सारे कॉरपोरेट हाउसेस के शेयर्स परचेस किए जा रहे हैं, इसीलिए दैट्स वाई यू कैन सी द स्टॉक प्राइसेस हिट्स ऑल टाइम हाई। आप कह सकते हैं कि स्टॉक प्राइसेस भी अभी तक सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली जितना भी गवर्नमेंट का बजट है वो कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट ने जो इमरजेंसी बजट निकाला है वो भी कंपनियों के स्टॉक परचेस करने में, सरकार ही स्टॉक परचेस कर रही है और उसके स्टॉक में पैसा लगा रही है। इसके कारण भी स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जब सब लोगों के पास पैसा होगा, जब सब डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे, और सरकार ने जो बेसिकली 11 लाख करोड़ जो दिए हैं वो हाउसिंग सेक्टर में दिए हैं ताकि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 11 लाख करोड़ अगर बैंक सैंक्शंस कर रहे हैं, लोन अगर दूसरों को दे रहे हैं, तो डैट मीन्स देयर इज़ द ह्यूज अवेबिलिटी ऑफ मनी इन द मार्केट फॉर हाउसिंग सेक्टर। तो इसके कारण जब सबके पास पैसा होगा तो ऑलरेडी फिर आप ये कह सकते हैं प्रॉपर्टी का और मतलब हाउसिंग सेक्टर में सारी प्रॉपर्टी का रेट भी हाई होते जाएगा, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, एवरीबडी इज़ हैविंग मनी। और एक और ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन इज़ जनरली द रिड्यूस और डीवैल्यूएशन ऑफ द यूनिट ऑफ योर करेंसी। That means from the same amount of currency now the less quantity is available to be purchased for the consumer। मतलब अब उसी पैसे से 10 की नोट से या उसी 1 के सिक्के से आप पहले जितना सामान खरीद सकते थे अब आप उतना सामान नहीं खरीद सकते। That means रिडक्शन और that means devaluation of per unit करेंसी और डिनोमिनेशन ऑफ योर करेंसी। आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो घट गई, अब आप उसी पैसे से ज़्यादा सामान नहीं खरीद सकते। डेट इज़ ऑल्सो इन्फ्लेशन, एक इन शॉर्ट इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन से, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो इन्फ्लेशन आप ये देख सकते हैं CPI यहाँ रेड कलर से है और WPI आपका आप ये कह सकते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है। तो अलग अलग इन लास्ट 5 ईयर्स आप यहाँ देख सकते हैं 2014, 15, 16 में किस तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स कैसे कैसे कम और ज़्यादा हुआ है। मैक्सिमम अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो दैट वाज इन द ईयर 2015-16, और अगर आप ये देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स में, और अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2014-15 में आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको अलग से भी मंथ वाइज भी आपको इन्फ्लेशन का रेट WPI और इन्फ्लेशन CPI का इंटरेस्ट रेट CPI इन्फ्लेशन रेट मैंने आपको दिया है, तो इस तरीके से आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हमेशा मतलब जो अभी की करंट, नाउ यू कैन ऐड एंड नाउ यू कैन कनेक्ट इट विद द रियलिटी, एंड द रियलिटी इज़ दिस दैट WPI इन्फ्लेशन हिट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 10.49%। अगर 2021 की अगर आप बात करें तो पहली बार ऐसा सिनेरियो हमें देखने को मिलता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स अभी तक में दैट हिट्स ऑल टाइम हाई
तो पहले ये आप कह सकते हो 7.39% था मार्च में, होलसेल इन्फ्लेशन वॉज 4.17% इन फेबररी, मार्च में 7.39% हुआ। और मतलब उसके बाद अभी अगर आप देखेंगे तो होलसेल प्राइस इंडेक्स भी, और पेट्रोल भी इसका एक कारण है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज़ राइजिंग, दैट्स वाई द फ्यूल जो हमको होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो कुछ परसेंट जो वेटेज उसका भी होता है, तो फ्यूल के प्राइस बढ़ने के कारण भी होलसेल के जितने भी सामान है, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट के जितने भी मतलब सामान है आप कह सकते हो, उस कैटेगरी में जितने भी गुड्स एंड कमोडिटीज़ आती है तो उसके प्राइजेज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। साथ में अगर आप यहाँ देखेंगे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो 4.06% आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए स्टैंडर्ड रेट है आपका 3 to 6%, तो CPI का स्टैंडर्ड रेट 3 to 6% है, जहां हम गुड्स और सर्विसेज दोनों के प्राइसेस को लेते हैं। तो इस तरीके से आपका यहां पर इन्फ्लेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। लेकिन एक और क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा यहाँ आना चाहिए कि इज़ इन्फ्लेशन इज़ बैड फॉर एवरीवन, क्या इन्फ्लेशन सबके लिए गलत होता है या गंदा होता है या बुरा होता है, क्या इन्फ्लेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? So there is a logical answer for this is inflation is not bad for everyone. It is completely based on what type of asset you are possessing. तो आपके पास किस टाइप के एसेट हैं। बेसिकली अगर आप देखें, if you own a particular property or a land and a particular building, then because of inflation price will go up. If someone has invested in a particular property, suppose a person has purchased 1 acre of land, or a person is purchased a house in a particular colony, then after 5 years he can see the increase and the spike in the prices of his property in which he invested. He will get the return on his investment after some year. तो उस expectation से अगर कोई property खरीदता है तो inflation will be helpful for him. And if a person is possessing asset that is कैश, अगर कैश है किसी के पास तो आप ये देख सकते हैं वो लॉस में है। क्यों वो लॉस में? बिकॉज ही हैज़ डिपॉजिटेड his complete amount as a fixed deposit in a particular bank, and he is getting the return of only 4% interest from the bank or 5%, और you must say कि 5% मिलता होगा, तो 5% उसको मिलता है। लेकिन इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो डेट स्टूड एज 5 to 6%, और होलसेल तो 10% आप ये कह सकते हो। 4% आपका कंज्यूमर है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, और होलसेल तो आपका 10% तक पहुंच गया है। तो 4% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 4% आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में के कारण खर्च हो जा रहा है, और साथ में आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स में 10% ख़त्म हो जा रहा है। तो दैट पर्सन हु पोजेस कैश, ही इज़ इन लॉस, वो लॉस में है अगर आप देखेंगे तो। देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन सबके लिए ख़राब नहीं होता। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि एवरी टाइम RBI इज़ ऑल्सो expecting, and RBI wants to keep certain level of inflation in stable percentage, stable in our country. Why? Because for promoting more and more investment. अगर इन्फ्लेशन नहीं हुआ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा नहीं आया और वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना स्टार्ट नहीं किए, तो डेट विल प्रमोट द सेविंग इन द इकनॉमी, एंड डेट विल रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट इन द इकनॉमी। और लोग अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इकनॉमी फिर ढप हो जाएगी। अगर मान लीजिए अगर पूरे इकनॉमी में एक क्वेश्चन भी आता है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वेदर द सेविंग इज़ ए वर्च्यू और नॉट, कि क्या सेविंग करना एक गुण होता है क्या? तो किसी एक इंडिविजुअल के लिए सेविंग करना गुण होता है, लेकिन पूरे इकनॉमी के लिए अगर सेविंग करने की बात करेंगे दैट विल बी द ह्यूज लॉस फॉर द इकनॉमी। क्योंकि अगर सब सेव करना शुरू करेंगे तो इन्वेस्ट कौन करेगा, खर्च कौन करेगा, इकनॉमी चलेगी कैसे? दैट्स वाई RBI इज़ एक्सपेक्टिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन in the economy. That's why we have a standard percentage that is 3 to 6%, and this is all about inflation. Thank you class.